Hello everyone, I am Sakshi Agarwal. I welcome you all on मेहनती बच्चे. So आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ Feb 2019 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਰਟ 1 ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ जनवरी 2019 तक ਦੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ. ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ. ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕੀਤੇ ਸੀ. ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ GSAT 31. GSAT 31 ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸਰੋ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸਰੋ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ GSAT 31 ਹੈ. ਓਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗੁਇਆਨਾ ਤੋਂ. ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਏਰੀਅਨ. ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸੋ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਏਰੀਅਨ 5 ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਏਰੀਅਨ 5 VA 247. ਓਕੇ ਏਰੀਅਨ 5 ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏਰੀਅਨ 5 ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ. ਓਕੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ VSATs ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ATM ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. E-ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਤਾਂ DTH ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ VSAT for ATM. ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ E-ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ. ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ. ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ. ਦੇਖੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰੋਵਰ. ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀ. ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰੋਵਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ. ਕਿਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ? ਨਾਸਾ ਦਾ. ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰੋਵਰ ਓਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਤਾ. ਕਿਉਂ ਐਂਡ ਕੀਤਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਸੀ ਨਾਸਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਸਕਣ ਇਹਦੇ ਬਟ ਕੰਟੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਤਾ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਨਾਸਾ ਦਾ ਮਾਰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ. ਮਾਰਸ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰੋਵਰ. ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲੀਨਾ. ਹੈਲੀਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਾਂਚ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ. ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਾਂਚ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਮਿਸਾਈਲ. ਓਕੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਚੰਦੀਪੁਰ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬਿਲਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਐਂਡ ਬਿਲਟ. ਓਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ. ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 to 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੀਨਾ ਹੈ ਉਹ 에ਅਰ ਲਾਂਚ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? सो हेलिना जो है वो एयर लॉन्च वेरिएंट है
किदा नाग दा। ओके नाग की है बेसिकली। एक होर चीज याद रखनी है हेलिना दे विच केड़ी टेक्नोलॉजी दा यूज किया गया है बेसिकली इहदे विच IIR जिन्हों इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर टेक्नोलॉजी बोलते हैं ओदा यूज किया गया। ओके सो नैक्सट गल करते हैं फोर्थ फैक्ट दी। देखो ये हैगी रिगार्डिंग एक ऐप ठीक है एज अ फैक्ट इनू याद रखना है। एक इन्फीटेक करके ऐप लॉन्च की गई है। पहली गल ये पता होनी चाहिए कि जी ऐप है इनू लॉन्च किने किया है इन्फोसिस ने। ओके किन्ना लई किया है 3rd ते 4th ईयर के जोड़े इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लिए किया है ठीक है। तो परपस की है इनू लॉन्च करने का ताकि वो स्टूडेंट्स नू प्रोफैशनल ते टैक्नीकल स्किल्स प्रोवाइड किए जान। ओके मेन याद होना चाहिए किने लॉन्च किया इन्फोसिस लई ते इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लई। नैक्सट 5th है KP बोर्ड के बारे। KP बोर्ड है कि ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट है। ओके जेड़ा क्योंकि पुलिस रोबोट है सो इसका कोई रैंक भी होगा। इसका रैंक हैगा सब इंस्पैक्टर का। ओके जेड़ा रोबोट है इनू बेसिकली इंडक्ट किथे किया गया है इनू इंडक्ट किया गया है एट पुलिस हैडक्वार्टर्स किथे दे तिरुवंथापुरम केरला। ओके याद रखने सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गल करते हैं 6th चिनूक या फिर अगर पूरा नाम लिखिए CH-47F चिनूक। ओके चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। देखो पेपर सीधा पूछ लेंदे होंदे हैं कि चिनूक इज व्हाट कोई गन का नाम है ठीक है किदा नाम है। सो चिनूक की है मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। ओके ये न्यूज क्यों सी बिकॉज 4 चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स नू इंडियन एयरफोर्स दे विच इंडक्ट किया जाऊगा। ओके ते ऑलरेडी आ चुके हैं कित्थे आए हैं ये मुंद्रा पोर्ट दे विच ठीक है ऑलरेडी आ चुके हैं इंडिया दे विच। हुण थोड़ा जिहा चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के बारे पढ़ते हैं। सब तो पहली गल ये पता होनी चाहिए है कि इन्हां नूं मैन्युफैक्चर किने किया है। इन्हां नूं मैन्युफैक्चर किया है बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है उहदा नाम हैगा बोइंग वेटॉल अमेरिकन कंपनी है। ओके ये याद रखना है जरूरी है। एक कंपनी के द्वारा चिनूक नूं मैन्युफैक्चर किया गया है। ओके ते है कि ये बेसिकली अमेरिकन ट्विन इंजन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है मिलिट्री हेलीकॉप्टर है या फिर इनू की बोल सकते हैं इट्स एन अमेरिकन ट्विन इंजन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। ओके हुण जिहड़ा हेलीकॉप्टर है ਇਹਦਾ काम की आऊगा क्यों इंडिया नूं इनू मंगवाउण दी जरूरत पई। बेसिकली ये हेलीकॉप्टर नूं यूज किया जा सकता है ट्रुप्स नूं ट्रांसफॉर्म करन दे लई ठीक है आर्टिलरी या इक्विपमेंट्स या फ्यूल नूं ट्रांसपोर्ट करन दे लई यूज किया जा सकता है। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन दे विच ਇਹਦਾ यूज किया जाऊगा। ओके याद रखना है ट्रांसपोर्टेशन ट्रुप्स की भी हो सकती है या फिर फ्यूल की भी हो सकती है या फिर इक्विपमेंट्स की भी हो सकती है। ओके सो नैक्सट फैक्ट डिस्कस करते हैं वो हैगा 7th फैक्ट रिगार्डिंग। देखो इंडिया दे विच फर्स्ट फुल डोम 3D थिएटर जिहड़ा है वो कित्थे इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का। एवं सीधे क्वेश्चन आएंगे ठीक है ताई मैं लिखवा रही हूँ। इंडिया का जिहड़ा फर्स्ट फुल डोम 3D थिएटर उन्होंने कित्थे इनॉग्रेट किया गया है बेसिकली किया गया उन्होंने कोलकाता दी साइंस सिटी दे विच कोलकाता साइंस सिटी। ओके नेक्स्ट है 8th फैक्ट रिगार्डिंग एरो इंडिया 2019।
बेसिकली एरो इंडिया 2019 ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, बेंगलुरु दे येलाहैंका एयर फोर्स स्टेशन। ओके, नैक्सट 9th फैक्ट डिस्कस करते हैं, वो हैगा रिगार्डिंग सर्जिकल स्ट्राइक। ओके, आई थिंक इहदे बारे सारा नूं पता ही होगा। एज वी ऑल नो दैट कि Feb 14 नूं पुलवामा अटैक होया। ओके, उस तो बाद फिर इंडिया ने अपनी कार्यवाही की। ओके, सो फाइनली Feb 26 नूं सर्जिकल स्ट्राइक की गई। किहदे द्वारा की गई सी? इंडियन एयरफोर्स से मिराज 2000। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द्वारा की गई बेसिकली मिराज 2000 की है, फाइटर जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स से, फाइटर जेट्स। ओके, तो इन्होंने की किया? इन्होंने बेसिकली टैरर कैंप्स उड़ाए किथे दे? बालाकोट एंड खैबर पख्तूनख्वा। ओके, PAKHTUNKHWA। नैक्सट गल करते हैं 10th फैक्ट दी, वो हैगा रिगार्डिंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो मैं तुहानूं पूरी न्यूज़ दस दी है। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है कि 2019 नूं सैलीब्रेट किया जाए एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ periodic table of chemical elements। ओके, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि 2019 नूं केड़ा ईयर सैलीब्रेट करांगे? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलीमेंट्स। ओके, एक होर की गल याद रखनी है कि जेड़ा पीरियोडिक टेबल है उन्होंने सब तो पहला डिजाइन किने किया सी? वो हैगा एक रशियन साइंटिस्ट दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। अगर पूरा नाम ना भी याद होवे, सिर्फ मेंडलीव नाम याद हो जाए तो भी ठीक है, बिकॉज मेंडलीव तो लिखा होगा ही नाल। ओके, एक रशियन साइंटिस्ट सी। नैक्सट 11th फैक्ट डिस्कस करते हैं। देखो ऐसी केड़ी कंट्री है जिथे फाइनेंशियल एमरजेंसी डिक्लेयर की गई सी? ओके, वो कंट्री हैगी USA। USA दे विच फाइनेंशियल एमरजेंसी नूं डिक्लेयर किया गया। ओके, क्यों? बिकॉज उत्थे जिहड़ा बजट पास होया सी, उस बजट दे विच US मैक्सीको बॉर्डर नूं लैके कोई भी फंड्स नहीं रखे गए सी, तां करके उत्थे फिर फाइनेंशियल एमरजेंसी घोषित की गई सी। ओके, नैक्सट 12th फैक्ट डिस्कस करते हैं, वो हैगा रिगार्डिंग वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ओके, इहदे बारे मेन चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जिहड़ी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है वो ऑर्गेनाइज कित्थे की गई? बेसिकली दुबई दे कित्थे? UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, मेन बस यही फैक्ट याद रखने दे बारे, होर कुछ नहीं पूछते, यही पूछते होंगे भी कित्थे हुई। नैक्सट न्यूज़ डिस्कस करते हैं 13th, वो है रिगार्डिंग 2018 द ईयर। 2018 द ईयर क्यों न्यूज़ सी? बिकॉज यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस दे द्वारा की घोषित किया गया कि जिहड़ा 2018 सी वो 4th वार्मेस्ट ईयर सी रिकॉर्डेड हिस्टरी का। ओके, ये याद रखना है।
वर्ल्ड मैट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मैं हैडकुआटर तुहानू ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन वाली वीडियो दस चुके हैं। सो ओदा हैडकुआटर जिहड़ा है वो तुसीं मैनू दसोगे कमेंट सैक्शन च, ठीक है। जिन्हें भी यूनाइटेड नेशन दी एजेंसीज है उन्होंने सब दे हैडकुआटर्स मैं ट्रिक्स की हेल्प नाल दसे हुए हैं। ओके, उन्होंने पक्का देख लियो बिकॉज उहदे उपर क्वेश्चन आने पूरे पूरे चांसिस हैं। नैक्सट गल करते हैं 14th करंट अफेयर की, वो है रिगार्डिंग एबर। हुण पेपर च डायरैक्टली पूछ लेंगे वट इज दिस, ये की है, ठीक है। किसी मिसाइल का नाम है, किसी करंसी का नाम है, की है। सो जिहड़ी एबर है ये बेसिकली कॉमन डिजिटल करंसी है, कॉमन डिजिटल करंसी। ओके, जिहड़ी करंसी है इनू लॉन्च किहड़ी कंट्रीज ने किया है, उन्हों का नाम भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्च बाय यूएई एंड सऊदी अरेबिया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनू याद रखना है। बेसिकली क्यों किया है, ताकि दोनों कंट्रीज जिहड़ियां ने उन्हां विच फाइनैंशियल सैटलमेंट दे लई इस करंसी का यूज किया जाए। ये डिजिटल करंसी है। ओके, नैक्सट गल करते हैं 15th फैक्ट दी। ऐसी केड़ी कंट्री है जिहदे स्कूल्स ते ऑफिशियल फॉर्म दे विच जिवें अपने पेरेंट्स दे लई मदर वर्ड लिखा हुंदा है, फादर दे लई फादर लिखा हुंदा है। हुण की होगा कि वो कंट्री दे विच जिहड़े स्कूल दे फॉर्म्स होणगे उहदे विच मदर दे नाम ते जिवें पेरेंट 1 मदर फादर नूं रिप्लेस करके पेरेंट 1 पेरेंट 2 लिखा जाऊगा। केड़ी कंट्री है, वो हैगी है फ्रांस, ठीक है। बेसिकली ये जिहड़े केड़े वर्ड्स नूं रिप्लेस करनगे, मदर फादर नूं, पेरेंट 1 पेरेंट 2। ओके, याद रखना है स्कूल दे फॉर्म्स दे विच। 16th फैक्ट देखो हैगा रिगार्डिंग जेपी मॉर्गन चेस। उन्हें न्यूज क्यों है, बेसिकली जेपी मॉर्गन चेस की है, ये यूएस का एक बैंक है, ठीक है। न्यूज क्यों सी, बिकॉज जेपी मॉर्गन चेस ऐसा फर्स्ट यूएस बैंक बन गया जिन्हें की लॉन्च की है क्रिप्टो करेंसी, लॉन्च क्रिप्टो करेंसी। ओके, तो जिहड़ी क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम की है JPM कॉइन, ठीक है। ये फर्स्ट बैंक है जिन्हें की क्रिप्टो करेंसी नू लॉन्च किया है। तो क्रिप्टो करेंसी केड़ी है, JPM कॉइन, अपने नाम ते रखा है बेसिकली। ओके, 17th है रिगार्डिंग इंस्टेक्स। यदि अगर आप फुल फॉर्म की गल करिए वो भी पता होनी चाहिए है, वो है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। ओके, बेसिकली न्यूज क्यों सी, ये है कि सब तो पहले तो पता होना चाहिए ये बेसिकली एक न्यू ट्रांजैक्शन चैनल है जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम ने बाकी यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी फ्रांस नाल मिलके स्टार्ट किया है। ये मैं लिख देनी है कि है बिकॉज इंपॉर्टेंट है, अ न्यू ट्रांजैक्शन चैनल। ओके, इन्हों स्टार्ट किने किया है, यूनाइटेड किंगडम ने, जर्मनी ते फ्रांस जैसी यूरोपियन कंट्रीज नाल मिलके। इन्हों स्टार्ट करने का पर्पस की है, बेसिकली ये अलाउ करूगा कंपनीज नू कि वो ट्रेड कर सकन, जिवें यूरोपियन कंट्रीज दी जिहड़ी कंपनीज है, ठीक है। ये चैनल के थ्रू वो ट्रेड कर सकदियां ने किदे नाल, ईरान दे नाल, क्योंकि ईरान दे नाल ट्रेडिंग ते यूएस ने थोड़े जे सैंक्शनस लगाई हुई हैं। ओके, जिहड़ा ये चैनल है इहदी हेल्प दे नाल जिहड़ी यूरोपियन कंट्रीज दी कंपनीज है वो ईरान दे नाल आराम दे नाल ट्रेड कर सकदियां ने। ओके, ये मतलब है। उस तो बाद नैक्सट फैक्ट की गल करते हैं 18th, वो हैगा देखो नाटो बेसिकली न्यूज़ च है। वाई, बिकॉज नाटो दे विच नाटो है कि पहला मैं नाटो बारे दस दी फिर दस दी न्यूज़ क्यों है। नाटो बेसिकली अगर आप फुल फॉर्म की गल करिए, नाटो हैगा नॉर्थ, ये आ सकता है पेपर च, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके,
बेसिकली एक ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, ठीक है, एक तरीके का अलायंस है, गठबंधन है बिटवीन 29 नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज दे विच। हुण न्यूज़ क्यों सी बिकॉज हुण दस्सिया ना कि अलायंस है 29 कंट्रीज दे विच, हुण इहदे विच 30th मैंबर भी ऐड हो गया। और 30th नेशन केड़ी है, वो हैगी बेसिकली मैकडोनिया। याद रखना है, पेपर सिंपल आ जाऊगा कि ऐसी केड़ी कंट्री है जिहड़ी 30th मैंबर बनी है नाटो दी, वो हैगी मैकडोनिया। तो नाटो के बारे याद रखना, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एक तरीके का इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। 29 नॉर्थ अमेरिकन ते यूरोपियन कंट्रीज दे विच, ये भी पता होना चाहिए कि केड़ी कंट्रीज हैं। तो अगर आप नाटो के हैडक्वार्टर्स की गल करिए, वो हैगे ने बेल्जियम के ब्रुसल्स दे विच, ब्रुसल्स बेल्जियम। ओके, नेक्स्ट 19th फैक्ट देखते हैं। देखो ऐसी दो केड़ी कंट्रीज हैं जिन्हों ने INF ट्रीटी, INF ट्रीटी दी अगर आप फुल फॉर्म देखिए वो हैगे इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोकस ट्रीटी, ठीक है। सो क्वेश्चन की गल कर रही सी कि ऐसी दो केड़ी कंट्रीज हैं जिन्हों ने INF ट्रीटी नू एग्जिट किया है। सो दो कंट्रीज है US एंड रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड रशिया। ओके, नेक्स्ट गल करते हैं 20th फैक्ट दी। ऐसी केड़ी कंट्री है जिन्हें कि डिसाइड किया है कि वह हिंदी नू 3rd ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंक्लूड करेंगे, 3rd ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंक्लूड करेंगे। सो कंट्री हैगी आबू धाबी। ओके, नेक्स्ट 21st फैक्ट है, फर्स्ट वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला भी, फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई। ऐसी फर्स्ट केड़ी वुमेन है जिन्होंने फ्लाई किया है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मोस्टली बच्चों ने नाम पता ही होगा, तेजस। ओके, ऐसी कौन है फर्स्ट वुमेन जिन्होंने फ्लाई किया है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस नू, वो हैगी PV सिंधु, PV सिंधु। नेक्स्ट फैक्ट जोड़ा है वो भी इंपॉर्टेंट है, 22nd। ओके, ये बेसिकली पंजाब के करंट अफेयर्स का भी पार्ट है। देखो ने एक क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है, नाम पता होना चाहिए, हीना जायसवाल। ओके, तो कित्थों है, ये बेसिकली फ्लाइट ल्यूटिनेंट है चंडीगढ़ तो। पंजाब के करंट अफेयर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट गल करते हैं 23rd फैक्ट की, वो हैगा हुण कुछ आप अपॉइंटमेंट्स की गल करांगे। ओके, सब तो पहला 23rd फैक्ट दे विच आपां गल कर रहे हैं ऋषि कुमार शुक्ला दी, ऋषि कुमार शुक्ला। ओके, ऋषि कुमार शुक्ला इंपॉर्टेंट नेम है बिकॉज इन्हों न्यू डायरैक्टर बनाया गया CBI का, न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI, CBI मीन्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, 24th फैक्ट है रिगार्डिंग फर्स्ट ऑब्समैन फॉर BCCI, BCCI मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ओके, कौन है, जस्टिस DK जैन, जस्टिस DK जैन। ओके, नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करते हैं 25th, वो हैगा रिगार्डिंग प्रमोद चंद्र मोदी। ओके, प्रमोद चंद्र मोदी क्यों न्यूज़ च, बिकॉज इन्हों अपॉइंट किया गया चेयरमैन के इंस्टीट्यूट का, CBDT मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस।
इंपॉर्टेंट नाम है, CBI वाला भी तो भी याद रखना है, आ सकता है। उस तो बाद 26 फैक्ट है, देखो एक प्लेस है, ठीक है, वो प्लेस दे विच की होया 190 लोगों की डेथ हो गई क्योंकि उन्होंने इलिसिट ब्रू हॉच नू कंज्यूम कर लिया सी। ओके, सो उन्होंने डेथ हो गई। सो केड़ी प्लेस है, बेसिकली वो प्लेस हैगी गोलाघाट, ठीक है। गोलाघाट ते किते किते इन्होंने जोर हट भी पाया हुआ है। मेन जी प्लेस याद रखनी है, गोलाघाट याद रखनी है। ओके, ये जी बेसिकली प्लेस है, ये कितने है, असम दे विच, ये असम की डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इत्थे 190 लोगों की डेथ हो गई सी बिकॉज उन्होंने इलिसिट ब्रू होच नू कंज्यूम कर लिया सी, पी लिया सी। ओके, नैक्सट गल करते हैं 27 फैक्ट की, ते अज दे लास्ट फैक्ट की, वो हैगा रिगार्डिंग ऐसा केड़ा एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड दे विच जिन्हों की वर्ल्ड दा बिजीएस्ट एयरपोर्ट इंटरनेशनल कस्टमर्स दे लई डिक्लेयर किया गया। सो अगर क्वेश्चन आ जाए वर्ल्ड्स बिजीएस्ट एयरपोर्ट फॉर इंटरनेशनल कस्टमर्स, सो केड़ा एयरपोर्ट है, दुबई, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, सो अज की क्लास दे विच टोटल 27 फैक्ट्स आप डिस्कस किए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ओके, इनू अच्छे तरीके नाल एवें करो कि एक बार वीडियो देख ली तो करंट अफेयर्स याद हो गए। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुहानू अपनी तरफ तो बहुत ही अच्छे तरीके नाल करंट अफेयर्स कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी थोड़ा करंट अफेयर मिस ना होए। ओके, हो सकता है कि फैब के ऊपर 2 वीडियोस होर बनन करंट अफेयर की, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो च कवर कर दा, बट अच्छे तरीके नाल दस्सण दे लई टाइम लग जाता है। ओके, सो हो सकता है 2 वीडियोस च कवर होवे, उदों तक अपनी अच्छे तरीके नाल तुसीं तैयारी करते रहो। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव होके एग्जाम दे विच जाइयो, पेपर पक्का क्रैक हो जाऊगा। सो मिलते हैं नैक्सट लैक्चर, अज लिए इन्ना ही। थैंक यू सो मच।